Good morning once again. We in the last lecture we were discussing the instruction set of 8051. There we discussed regarding the addressing modes, then we discussed the data transfer instructions of 8051, and we will continue with arithmetic instructions of 8051. 8051, it can perform various arithmetic operations. They are addition, subtraction, increment, decrement, multiplication and division. Accumulator will always participate in all the arithmetic and logical instructions. It is one of the out of the two operand, one operand must be the accumulator, right? So today we start with the addition arithmetic instruction. The very first arithmetic instruction is add. As of 885, here also it is add destination comma source, then it is ADC destination comma source, right? Then it is DAA. These three instructions, they belong to the addition instruction of 8051. Then there will be SBB, SUBB. चलो इसको अभी 2 मिनट बाद बात करते हैं. Add destination source, right? It is exactly same that as of 885 or 886. The ADC add with the carry, destination source, destination operand. This destination operand is always be the accumulator. So दो में से एक ऑपरेंड अक्यूमुलेटर 85 में भी हमेशा अक्यूमुलेटर ही होता था, बट देयर इट इज इम्प्लाइड, बट इन 8051 अक्यूमुलेटर इज नॉट इम्प्लाइड. देयर इज नो addressing mode like implied addressing mode in 8051. So things are not implied. We have to state, right? Though it is always be there, but still we have to state it, right? It is add source. Source can be any of the various addressing modes ways. That means it can be your इमीडिएट डाटा, इट कैन बी और डायरेक्ट एड्रेसिंग के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, रिलेटिव के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं. कोई भी एड्रेसिंग मोड यहाँ पर हो सकता है, राइट? एंड दिस मस्ट ऑलवेज बी द अक्यूमुलेटर. इट इज DAA, that is decimal adjust accumulator. It is used to convert your binary sum of two BCD numbers. जैसे 885 में था वैसे वैसे यहाँ पर भी है. So add का you can have examples of, that is add, you can say add A comma 45H, right? It's as you know, yeah, add A comma R3, yeah, add A comma at the rate R3, right? Yeah, ADC A comma you can say 25. So this way you can have various instructions of 8051 addition instruction. यहाँ पर immediate data जो है 45 है, that is being added to the accumulator. accumulator में जो भी कुछ कंटेंट है उसके अंदर 45 ऐड हो जाएगा. Again I am saying that has it indicate that it is immediate data. Here the content of R3 register, that is to be added to accumulator. Here the content of the memory location whose address is in R3, that means indirectly address किया हुआ जो memory location है R3 से, उसका जो content है वो accumulator में add हो जाएगा. यहाँ पर it is sorry ADC नहीं ADDC, ठीक है, add with carry, right? और ये DAA इंस्ट्रक्शन, जब कोई भी ये सम इंस्ट्रक्शन है, एडिशन इंस्ट्रक्शन है, अगर ये दो ऑपरेंड दोनों के अंदर BCD डाटा है और हम उसको BCD सम करना चाह रहे हैं, तो नो डाउट दे विल परफॉर्म द बाइनरी एडिशन, बट देन लेटर ऑन दिस बाइनरी एडिशन कैन बी कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस DAA इंस्ट्रक्शन. ये किसी भी एडिशन इंस्ट्रक्शन के बाद यूज हो सकती है, नहीं होती ही है, राइट?
DA must always follows the any of these addition instruction, by then it will convert the binary sum जो कि accumulator में आएगा of two valid BCD number, जो BCD number है वो ये दोनों BCD number होने चाहिए तभी वो convert करेगा. So it is add with the carry and decimal adjust accumulator. Then subtraction के लिए 8051 में 8086 में 8085 में हमारे पास दो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन होती थी, एक सब्ट्रैक्शन, एक सब्ट्रैक्शन विद बोरो. बट यहां पर इन 8051 सब इंस्ट्रक्शन नहीं है, ओनली सब विद बोरो है. दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन विद बोरो, राइट. सो इट इज सब्ट्रैक्शन विद बोरो, डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स. ठीक है. आप कहोगे कि सब्ट्रैक्शन विद बोरो है, सब तो इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं है? द सब्ट्रैक्शन, अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्टेज पे सब इंस्ट्रक्शन यूज करनी है, द ओनली थिंग इज कि भाई इस इंस्ट्रक्शन को यूज करने से पहले अगर हम कैरी को क्लियर कर देते हैं तो इफ CY इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 8085 में भी SUB एंड SBB बोथ आर सेम. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ having both the instructions, now we are having only sub instruction, sub with borrow, right. Then तो जनरली SBB कहाँ यूज होगी? अभी अब एक एग्जांपल डील करेंगे जिसमें SBB का हम यूज करते हैं और वहां पर हम देखेंगे किस तरह क्लियर को कैरी करके हम SBB का यूज करेंगे. नॉर्मली SBB जो इंस्ट्रक्शन है या ऐड विद कैरी जो इंस्ट्रक्शन है वो मल्टी बाइट एडिशन में यूज होता है, जहां पर कैरी प्रोपगेट होना होता है. जैसे मैं कहूं कि 45, 95 और 60 F3 को दोनों को ऐड करो, तो हम ऐड करेंगे तो ऐसे ऐड करेंगे बाइट बाय बाइट. ये ऐड होगा, इसको इनमें से एक अकोमोलेटर में जाएगा, ऐड करेंगे, रिजल्ट अकोमोलेटर में आएगा, इसको कहीं और ट्रांसफर करेंगे, और जब इस स्टेज पर हम इसको कैरी आया वो यहाँ जाएगा, और यहाँ पर इस स्टेज पर हम ऐड करने की बजाय इस स्टेज पर हम ADDC करेंगे. सिमिलरली यहाँ पर जब SUB यूज करेंगे तो हमने CY को 0 पहले क्लियर करना होगा, उसके बाद ये एग्जैक्टली फिर यहाँ पर हम SUBB यहाँ दोबारा यूज करेंगे. ठीक है. सो 8085 में और 8086 में जो ऐड और सब इंस्ट्रक्शन थी वही फॉर्मेट यहां पर भी है. देन कम्स नेक्स्ट टू इंस्ट्रक्शन, दैट इज INC एंड योर DEC. दिस इज अगेन योर सेम जो 8085 में था, 8086 में था, इंक्रीमेंट बाय 1 और डिक्रीमेंट बाय 1. यहां पर जो भी ऑपरेंड आपका है, ऑपरेंड कोई भी हो सकता है, जो हमारे वेरियस एड्रेसिंग मोड से हम अपना कोई भी ऑपरेंड यहां स्पेसिफाई कर सकते हैं. जैसे आपका ये ऑपरेंड, सपोज वी कैन हैव एग्जांपल्स R5 @R5. इमीडिएट डाटा नहीं हो सकता, माइंडेड इमीडिएट डाटा नहीं हो सकता, राइट. INC DPTR, राइट. सो एक यहां पर क्या है, इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर R5, रिजल्ट विल बी इन R5. यहां पर क्या है, डिक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज in R5, result will be in memory, the same memory which is pointed by R5. ये 16 बिट का इंक्रीमेंट हो रहा है DPTR, क्योंकि 16 बिट का रजिस्टर है, सो इट इज 16 बिट इंक्रीमेंट ऑपरेशन. इन केस ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट द बेसिक डिफरेंस इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. जैसे 8085 86 में हम कह रहे थे कि बेसिक डिफरेंस क्या था कि इन केस ऑफ ऐड और सब्ट्रैक्शन CY इज मॉडिफाइड, right. But in case of this except parity flag, बल्कि CY क्या, सारे फ्लैग मॉडिफाई हो रहे थे, यहाँ पर CY भी मॉडिफाई हो रहा था, ऑक्सिलरी कैरी भी मॉडिफाई हो रहा था, ओवरफ्लो भी मॉडिफाई हो रहा था, पैरिटी भी मॉडिफाई हो रहा था. सो ये चारों के चारों फ्लैग जो 8051 में थे, ये चारों के चारों मॉडिफाई होते थे आफ्टर या तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो. बट इन केस ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ पैरिटी फ्लैग मॉडिफाई होगा, बाकी तीनों के तीनों फ्लैग ये कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, ओवरफ्लो, दे विल नॉट बी मॉडिफाइड. दैट मीन्स एक तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद कैरी आता है या ऑक्सिलरी कैरी आता है या ओवरफ्लो होता है, वो चीज यहां पर नहीं होगी. सो इट इज इंक्रीमेंट और
डिक्रीमेंट और बेसिक डिफरेंस ऐड बाई वन और सब्ट्रैक्शन बाई वन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पैरिटी फ्लैग मॉडिफाई होगी और उसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन में पैरिटी के साथ साथ बाकी तीनों कैरी, ऑक्सिलरी कैरी और ओवरफ्लो फ्लैग भी मॉडिफाई होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, चलो उससे पहले एक प्रोग्राम की हम बात करते हैं। चलिए मान लीजिए मैं कहता हूं राइट ए प्रोग्राम फॉर 16-bit सब्ट्रैक्शन। राइट, एक प्रोग्राम लिखो जिसमें कि 16 बिट का सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। ठीक है, सपोज हमने क्या करना है, R2 और R3 मेमोरी लोकेशन में हमारा सोर्स है, बल्कि डेस्टिनेशन है जिसमें से घटना है। R0 और R1 में हमारा डाटा टू बी सब्ट्रैक्टेड है। Right, this data, that means subtract the data of R0 and R1 from R2 and R3, save the result in memory location 40 and 41H. This is our program to we have to write down. ठीक है, तो डाटा कहाँ है? 16 बिट का डाटा R2 R3 में एक, दूसरा डाटा R0 R1 में है। R0 R1 के डाटा को हमने घटाना है R2 R3 में से। राइट, अब ये जो डाटा है, ये 16 बिट का डाटा, सपोज 20408060 ये डाटा मेमोरी में। राइट, यहां पर R2 R3, यहां पर ये जो डाटा है आप कहिए ये डाटा R2 में है, ये डाटा R3 में है, ये डाटा R0 में है, ये डाटा R1 में है। राइट, सो इस तरीके से डाटा हमारा क्या हुआ, 40206080 ये डाटा, सॉरी इसमें से 6080 में से हमने ये घटाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से ये घटेगा। राइट, अब ये जो सब्ट्रैक्शन होगा 8086 में कोई भी 16 बिट का सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन नहीं है, जैसे कि 85 में हमारी DAD इंस्ट्रक्शन होती थी। 86 में तो वो 16 बिट का प्रोसेसर था तो उसमें सारी इंस्ट्रक्शन 16 बिट की ही थी, बट 85 में भी 16 बिट का हम एडिशन कर सकते थे। यहाँ पर वहाँ पर भी कोई 16 बिट की सब्ट्रैक्शन नहीं थी और 8085 के साथ साथ यहाँ पर भी कोई 16 बिट का सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो हमें इसे 8-8 बिट का तोड़ करके ही हमें इसको करना है। और यहाँ पर SUB इंस्ट्रक्शन की बजाय SUBB ही इंस्ट्रक्शन है, तो एल्गोरिथम वही होगी, एक एक करके डाटा अक्यूमुलेटर में लाएंगे, उसमें से दूसरा डाटा घटाते जाएंगे एंड सो ऑन। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CL क्लियर कैरी, ये इंस्ट्रक्शन अभी आई नहीं है पर आगे पढ़ेंगे। दिस इंस्ट्रक्शन इज टू क्लियर द कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग जो है अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद CY विल बिकम्स 0। ठीक है, अब SUBB इंस्ट्रक्शन यूज करने का हमारे पास हो गया पहली स्टेज पर। सबसे पहले हम अक्यूमुलेटर में डाटा लाए, कहां से, R2 वाला, ये डाटा अक्यूमुलेटर में लाए R2 वाला। ठीक है, और अच्छा इसमें से सॉरी हमने उल्टा कर दिया, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 है। राइट, R2 वो कर दिया। ठीक है, R2 R3 में से ये घटाना था हमने, यहाँ पर गलत लिख दिया था। ठीक है, सो ये हो गया, R2 का डाटा इसमें आ गया, देन R3 जो R2 में से R0 जाएगा। राइट, सो अब हम क्या करेंगे, वी विल से SUBBA एंड कहाँ से, R0 से। रिजल्ट कहाँ गया, अक्यूमुलेटर में। ये रिजल्ट कहाँ जाना है हमें, 40 और 41 में। सो हम इसको 40 में ट्रांसफर करेंगे। देन वी विल से मूव 40H अक्यूमुलेटर।
अक्यूमुलेटर का डाटा जो है 48 में चला गया। अक्यूमुलेटर में क्या है, लोअर बाइट जो सब्ट्रैक्शन हुआ था वो है हमारे पास। देन हमने किया दूसरा बाइट बुलाए, मूव ए कॉमा R3, राइट। सो एक तरीके से कहिए R3 R2 में ये डाटा था, R1 और R0 में से घटा रहे हैं, राइट। इसमें से ये घट गया, अब यहां पर दूसरा डाटा R3 में अक्यूमुलेटर में फिर बुला लिया। देन अगेन वी से SUBB A कॉमा का R1। अब यहां पर हमें क्लियर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि यहां पर SUBB हम यूज करें तो स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं, तो कैरी फ्लैग के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हमने यहां इंश्योर किया कि कैरी 0। बट यहां पर अगर कैरी आता है, दैट मीन्स बोरो आता है, दैट बोरो इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हियर आल्सो, CY is to be subtracted from here also, so we have to use SUBBA, right? और ये इसमें से ये घट गया। Then we can say move 41H, A, and hence, so this way we can subtract 16-bit data। एडिशन करना है, एडिशन भी इसी तरीके से होगा, चाहे वो BCD एडिशन हो, चाहे नॉर्मल 8 बिट का एडिशन हो, 16 बिट का एडिशन हो, that can be done like this one only। Next instruction is, that is multiplication MUL and division, that is DIV। यहां पर first time B register that comes into the picture। मल्टीप्लीकेशन में A और डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ A और B रजिस्टर ही यूज होंगे। For multiplication and division, A and B register, they are the only register which can be used. None of the other register can be used। Multiplication हुआ, हमने कहा A B, इसका मतलब है multiply A into B। Once they are multiplied, the result जो कि 8 बिट के ये दोनों थे, the result will be of 16 bit। In case of that होगा ही 16 बिट का, 16 बिट का रिजल्ट है, तो दैट वो रजिस्टर 16 बिट का रजिस्टर मतलब मल्टीप्ले का जो रिजल्ट आया, दैट रिजल्ट विल गो इनटू बी ए। दैट मीन्स हायर बाइट विल गो टू द बी रजिस्टर एंड लोअर बाइट विल गो टू द अक्यूमुलेटर, राइट। अगर रिजल्ट और साथ में जब भी रिजल्ट जो है हमारा मल्टीप्लीकेशन में, व्हेन रिजल्ट इज मोर देन FF, that more than of F, in that case the overflow flag will set। that means if result is more than 8 bit, FF से ज्यादा हमारा रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लाई के बाद, तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा, अदरवाइज ओवरफ्लो फ्लैग रीसेट रहेगा। और ये जो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है ये हमेशा ही अनसाइंड होंगे। इन 8086 बी में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की इंस्ट्रक्शन थी, वहां पर साइंड और अनसाइंड दोनों थे। MUL और IMUL मल्टीप्लिकेशन के लिए होती थी 86 में, DIV और IDIV डिवीजन के लिए होती थी। यहाँ पर सिंपल MUL और DIV अनसाइंड के लिए थी, और IDIV और IMUL साइंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए थी। बट इन 8051 सिर्फ और सिर्फ अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन और अनसाइंड डिवीजन ही है, राइट। सो अगर उसमें ओवरफ्लो एक से ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाएगा, अगर FF से ज्यादा है, रिजल्ट जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। और 2 ऑपरेंड होंगे, दोनों ऑपरेंड A और B ही हो सकते हैं। ऑल द फ्लैग विल बी मॉडिफाइड एज पर द रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज DIV। DIV में क्या है, इसका मतलब है डिवाइड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर A विद रजिस्टर, नो देयर इज नो कॉमा एंड ऑल। इसका मतलब A को B से डिवाइड करो, सो दिस विल परफॉर्म द ऑपरेशन A डिवाइड बाई B। Once the operation is over, then A register will have the quotient and B register that will have the remainder। ऑपरेशन मतलब डिवीजन होने के बाद, न्यूमरेट डिवीजन होने के बाद जो हमारा क्वोशंट है वो हमेशा A में होगा और रिमाइंडर जो है वो हमेशा B में होगा। अब
डिवीजन में एक बात और भी है कि ये हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं डिवाइड बाई 0 तो नहीं हो रहा है, एरर तो नहीं आ रही है, राइट। अगर ओवरफ्लो फ्लैग और कैरी फ्लैग दोनों 0 आती है, दोनों 0 है, ये चीज इंडिकेट करती है कि डिवीजन जो है या बी रजिस्टर जो है दैट इज बी रजिस्टर इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो हमारा डिवाइडेंड है वो 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ये इंश्योर करता है। अगर ओवरफ्लो फ्लैग 1 आ गया, इफ द ओवरफ्लो फ्लैग इज 1 इट मीन्स और cy इज 0, इट मीन्स द ओवरफ्लो फ्लैग ये इंडिकेट करता है कि बी रजिस्टर जो है वो 0 है और ये इनफाइनाइट लूप में जाएगा। इसलिए अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको वहां से हमें बाहर करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा, और एक एरर या इनवैलिड ऑपरेशन क्या एज ए रिजल्ट वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमें उसको उस केस में रीसेट करके सिस्टम को वहां से बाहर निकालना होगा, राइट। चलो एक ऑपरेशन अब इसके बाद एक और वो करते हैं प्रोग्राम। सपोज मैं कहता हूं राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स stored in external RAM location 8000 H पे एक नंबर है X, 8001 पे एक नंबर है Y। इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करवाना है और जो रिजल्ट आएगा वो 802 और 8003 पे वो रिजल्ट हमने सेव करना मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब ये जब दो नंबर X और इनटू y को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सम आएगा, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट विल गो इनटू लाइक दिस, ठीक है। सो नाउ वी विल राइट एक्सटर्नल रैम है, एक्सटर्नल रैम में ये मेमोरी लोकेशन है, 16 बिट का एड्रेस है एक्सटर्नल रैम के लिए। तो जो डाटा आएगा इन मेमोरी लोकेशन से, उस डाटा को, वो डाटा हमेशा, क्योंकि एक्सटर्नल जैसे हमने पढ़ा था एक्सटर्नल रैम हमेशा ही इनडायरेक्टली एक्सेस होगी। इंटरनल रैम अप टू 07 तक, जैसे हमने पढ़ा था क्या बोला कि हमारा मेमोरी लोकेशन 00 से लेकर के, इंटरनल में 00 से लेकर अगर हमारी मेमोरी लोकेशन 7F तक है, राइट, नॉट 7F, हाँ 7F तक है, तो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी एड्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर 80 से लेकर के F तक हमारी एड्रेसिंग है तो उस केस में R0 और R1 रजिस्टर ही हम इनडायरेक्ट एड्रेस के लिए यूज करेंगे, इनडायरेक्ट एड्रेस होगा और R0 R1 ही यूज करेंगे। और अगर इससे ज्यादा आगे है दैट मीन्स 0100 से लेकर FFF तक का रेंज है हमारा एक्सटर्नल रैम की, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करेगा, DPTR ही हम उसको यूज कर सकते हैं एज एन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कराने के लिए। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कौन कराएगा, DPTR। ये बात हमें याद रखनी है, राइट। तो सबसे पहले हमने यहां पर कौन सा जो होगा, हमें DPTR एज ए मेमोरी पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले DPTR को हम इनिशियलाइज कराएंगे। वी विल से मूव DPTR, क्या जाना है, ये लोकेशन, तो इसको एज ए डाटा बनाकर हम डालेंगे तो #8000H। सो इस तरीके से DPTR के अंदर वो चला गया। जब एक्सटर्नल रैम से हम कोई डाटा लेके आते हैं तो हमारी इंस्ट्रक्शन मूव की बजाय मूव X होगी। सिंपल मूव इंस्ट्रक्शन जो है हमारी, ये अंदर अंदर जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है अप टू 128 बाइट तक का जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है इंटरनल रैम में, उसके लिए मूव इंस्ट्रक्शन है। जैसे ही हम एक्सटर्नल पर चले जाते हैं, जैसे ही हम एक्सटर्नल रैम पर जाएंगे, उस केस में हमारा मूव इंस्ट्रक्शन की बजाय हमारी इंस्ट्रक्शन होगी मूव X। अगर वो एक्सटर्नल मेमोरी रैम की बजाय रोम है तो हमारा क्या होगा, ये मूव X की बजाय मूव C होगा। तो यहां पर हमारी एक्सटर्नल रैम है तो इट विल बी
मूव एक्स और यहां पर ए में लेके आना है, यहां से उस मेमोरी लोकेशन से जिसको कि डीपीटीआर पॉइंट कर रही है। सो मेमोरी लोकेशन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए @ वाला ये साइन यूज करेंगे एंड देन वी विल से डीपीटीआर। सो डीपीटीआर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था दिस वन, ये डाटा अकोमोलेटर में आ गया। इसको हमने मूव बी रजिस्टर में इसको मैंने शिफ्ट कर लिया, क्योंकि ए और बी ही यूज हो सकते हैं, तो इसको मैंने बी रजिस्टर में कर लिया। फिर मैंने कहा INC DPTR, डीपीटीआर एक से इंक्रीमेंट होकर के यहां आ गया, राइट। देन इसको मैंने ए में बुला लिया, अगेन मूव XA, DPTR। अब ये ए में आ गया, देन आई विल से MUL मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई हो गए, अगेन INC DPTR, राइट। अब मैं भेजूंगा कहां पर, सम को, ये जो मल्टीप्लिकेशन के बाद पहले इसको फिर इसको, राइट। सो मूव, ये डीपीटीआर यहां पर पहुंच गया, तो मैं कहा मूव एक्स, कहां पर आना, मेमोरी में आना है, तो @DPTR, A, then INC again DPTR, then again move x @DPTR, और अब कहां से आएगा, B से, and that is over. So this is your arithmetic instructions and we discussed all कौन से अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हुए। ऐड के लिए 8 बिट के एडिशन के लिए है हमारे पास, राइट। 3 इंस्ट्रक्शन है, ऐड विद कैरी और DAA। देन सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास एक ही इंस्ट्रक्शन है 8 बिट के लिए, दैट इज SUBB, राइट, सब्ट्रैक्ट विद बोरो। देन वी हैव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, 8 बिट का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकता है सिंपल रजिस्टर और मेमोरी लोकेशंस का, और 16 बिट का भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकता है, अगर हम चाहे तो डीपीटीआर को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज एन एग्जांपल वेयर 16 बिट डाटा इज बीइंग इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए A और B ही दोनों रजिस्टर हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जो हायर बाइट है आफ्टर द रिजल्ट इज देयर, जो हायर बाइट है वो B में आएगी, लोअर बाइट अक्यूमुलेटर में आएगी। डिवीजन में A डिवाइड बाई B होगा, A के अंदर कोशेंट आएगा आफ्टर द ऑपरेशन और B के अंदर रिमाइंडर आएगा, राइट। सो दिस इज योर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। देन वी गो फॉर द बूलियन इंस्ट्रक्शंस, राइट, और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। फॉर लॉजिकल जैसे 885 में था, 886 में था, जो हमारे बेसिक 3 लॉजिकल ऑपरेशन है, दैट इज एंड which is done by ANL or ORL or XRL. These are the 3 instructions which are used to perform the AND operation, the OR operation and the XOR operation. Logically AND, logically OR, logically XOR, right? Destination सभी में डेस्टिनेशन होगा, क्योंकि यहां पर इंप्लाइड एड्रेसिंग नहीं है डेस्टिनेशन, और ये सोर्स। सो दीज आर देन, यहां पर एंड और एक्सोर ये बाइट ऑपरेशन भी कर सकते हैं और बिट ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स एक इंडिविजुअल बिट के साथ भी ऑपरेट करा सकते हैं और बाइट के साथ भी ऑपरेशन करा सकते हैं। हाँ, अगर बिट ऑपरेशन हो रहा है तो इनमें से एक बिट हर हालत में कैरी होगी, दूसरी बिट कोई भी हो सकती है, राइट। सो अगर बिट एंड ऑपरेशन है या बिट और ऑपरेशन है या बिट एक्सआरएल ऑपरेशन है, तो आउट ऑफ द 2 बिट 1 बिट मस्ट बी द कैरी, दूसरी बिट कोई भी हो सकती है जो कि बिट एड्रेसेबल होनी चाहिए, ठीक है। सो सेकेंड बिट कैन बी एनी ऑफ द बिट एड्रेसेबल बिट, राइट, और वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी हो सकती है और वो अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। सो
तीनों ऑपरेशन बाइट बाय बाइट भी हो सकते हैं, बिट बाय बिट भी हो सकते हैं। बाइट में तो कोई भी एड्रेसिंग मोड हम यहाँ यूज कर सकते हैं, कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है, बट R0 और R1 एक इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड और डेस्टिनेशन नहीं हो सकते। बाकी कोई भी परमुटेशन कम्बिनेशन हमारा एड्रेसिंग मोड्स का हो सकता है। अगर बिट की बात करें तो बिट में अगर है बिट ऑपरेशन है तो उस केस में वन ऑफ द टू बिट मस्ट बी द कैरी, वन ऑफ द टू बिट मस्ट बी द कैरी, राइट, और इट विल ऑलवेज बी द डेस्टिनेशन of the two bit, one must bit with the carry, and carry it will always be the destination. The second bit कोई भी bit addressable addressing mode के जरिए एड्रेस की जा सकती है, और वो हर हालत में वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है और अनकॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है, राइट। सो कोई फ्लैग रजिस्टर विल नॉट बी मॉडिफाइड, क्योंकि लॉजिकल है तो फ्लैग रजिस्टर मॉडिफाई नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल ANL A, 77H, राइट। ए के डाटा के साथ 77H को लॉजिकली एंड कराओ, जो रिजल्ट आएगा वो ए में जाएगा। ऐसे ही ORL 50H 50H 50H, ये जो 50 है लॉजिकली एंड द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन, ये एक मेमोरी लोकेशन होगा जिसका एड्रेस 50 होगा। इस मेमोरी एड्रेस पर जो डाटा है दैट इज टू बी और विद 50H। यहाँ पर ये हैश साइन शो कर रहा है कि ये 50 जो है ये डाटा है। यहाँ पर ये नंबर इसके साथ हैश नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये मेमोरी एड्रेस है। सो मेमोरी कंटेंट इज एडिड विद ओड विद इमीडिएट डाटा, 8 बिट के डाटा के साथ। सिमिलरली XRL A, @ R1। सो उस मेमोरी लोकेशन का डाटा को पॉइंट करो, ये मान लीजिए ये R1 पॉइंट कर रहा है इसमें, तो इस मेमोरी लोकेशन के डाटा को A के साथ कोड कराओ, एक्सोर कराओ और उसको A में रिजल्ट डाल दो। ANL CY, यहाँ तो C लिखा जाएगा, CY नहीं लिखा जाता, C, 20H। So there will be a bit which can be addressed by this 20H। एक कोई मेमोरी लोकेशन होगी, उस मेमोरी लोकेशन में कोई बिट होगी जो जिसका एड्रेस 20H होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि 8051 में बाइट एड्रेसेबल भी है और बिट एड्रेसेबल भी है। दैट मीन्स अगर हम याद करें वंस अगेन, तो शुरू की 32 लोकेशंस को छोड़ दिया जाए। 32 लोकेशन का मतलब 20 लोकेशन तक, सॉरी नॉट 20, 1F लोकेशन तक, ये जो 32 लोकेशन है यहाँ से नीचे तक, राइट, ये 32 लोकेशन 8 बैंक में डिवाइड थी, राइट। इसके बाद यहाँ से 20 से लेकर के 2F तक की, 20 से लेकर के 2F तक की जो मेमोरी थी, रैम मेमोरी, ये बिट एड्रेसेबल और बाइट एड्रेसेबल मेमोरी थी। दैट मीन्स इसकी इंडिविजुअल बिट जो है दैट इज हैविंग एड्रेस। सो यहाँ पर कोई रजिस्टर होगा, उस 8 बिट का रजिस्टर होगा, नो डाउट। उस 8 बिट के रजिस्टर के अंदर एक बिट होगी, इस बिट का एड्रेस 20H होगा। तो इस बिट को, सिर्फ इस बिट को C के साथ लॉजिकली एंड कराना है। सिमिलरली ANL C, ओवरफ्लो बार, इसका मतलब है C को लॉजिकली एंड कराओ, कैरी फ्लैग को लॉजिकली एंड कराओ, किसके साथ? ओवरफ्लो फ्लैग के कॉम्प्लीमेंट के साथ। दैट मीन जो कुछ ओवरफ्लो है, 0 है तो 1 के साथ एंड कराओ, और ओवरफ्लो 1 है तो 0 के साथ एंड कराओ। सो जो भी ओवरफ्लो का स्टेटस है उसका पहले कॉम्प्लीमेंट करो और उसको फिर C के साथ। सो दीज आर द एग्जांपल वेयर अनकॉम्प्लीमेंटेड
bit is ended with C, where complemented bit is ended with C. So ये एंड ऑपरेशन कैरी के साथ कॉम्प्लीमेंटेड भी हो सकता है, अनकॉम्प्लीमेंटेड भी हो सकता है. सो दीज आर लॉजिकली एंड और एक्सोर ऑपरेशन. नेक्स्ट इज CLR, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. ऑपरेंट, कोई भी ऑपरेंट हो सकता है. एंड कॉम्प्लीमेंट, CPL, ऑपरेंट. राइट. इट इज टू क्लियर, इट इज टू कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मतलब नोट्स ऑपरेशन. यहां पर ये इसको कंटेंट विल बी 0. इट इज समथिंग लाइक किसी रजिस्टर में या किसी लोकेशन पे 0 0 को ट्रांसफर कर देना. इट इज समथिंग लाइक उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना, नोट ऑपरेशन परफॉर्म कर देना. ये दोनों के दोनों अगेन बिट बाय बिट भी हो सकती है, और बिट ऑपरेशन भी हो सकता है, और बाइट ऑपरेशन भी हो सकता है. राइट. और अगर ये बाइट है, इफ इट इज बाइट, देन सिर्फ और सिर्फ अक्यूमुलेटर के साथ हो सकता है. इफ इट इज बाइट ऑपरेशन, दैट मीन्स क्लियर करना है CLR. मान लीजिए मैं ये नहीं कह सकता R0 कि भी R0 के कंटेंट को क्लियर करो. ठीक है. मैं ये कह सकता हूं, सॉरी CLR, मैं ये कह सकता हूं CLR A. सो क्लियर और कॉम्प्लीमेंट में अक्यूमुलेटर कैन बी द ओनली ऑपरेंट. अगर किसी और रजिस्टर का मेमोरी लोकेशन का अगर हमें कंप्लीमेंट करना है तो उसको अक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करना पड़ेगा. राइट. सो अगेन वही बात आ गई कि दो में से एक ऑपरेंड अक्यूमुलेटर होगा. अब यहाँ पर है ही एक ऑपरेंड, तो ऑब्वियस है दैट ऑपरेंड मस्ट बी द अक्यूमुलेटर. राइट. अगर बिट ऑपरेशन है तो कोई भी बिट एड्रेसेबल बिट जो है यहां पर हो सकती है. जैसे CLR कैरी, कैरी को क्लियर करो, या जैसे CLR क्लियर P1.1. दैट मीन्स जो हमारा रजिस्टर है P1 रजिस्टर, पोर्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट 1 रजिस्टर, इसकी जो 8 बिट है, ये 8 जो बिट थी, इसमें ये आपका कहलाएगी P10, P1.1, P1.2 एंड ये P1.7. तो इसकी ये जो बिट है, इस बिट को क्लियर करो. ठीक है. सेम इज कॉम्प्लीमेंट. अगर कॉम्प्लीमेंट करना है CPL20H. सो एक मेमोरी लोकेशन होगी, दैट मेमोरी लोकेशन इज बिट एड्रेसेबल, और उस बिट एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कितना होगा 20H, और उस 20H में जो बिट है उस बिट को हमने कॉम्प्लीमेंट करना है. 0 है तो 1 और 1 है तो 0. राइट. सो इट इज क्लियर एंड कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन. ऑपरेंड जो है वो बाइट भी हो सकता है, और बाइट है तो सिर्फ अक्यूमुलेटर होगा. बिट भी हो सकता है, बिट है तो कोई भी बिट एड्रेसेबल जो हमारी बिट है वो हो सकती है. किसी भी रजिस्टर की इंडिविजुअल बिट जिसको कि हम बिट एड्रेस किया जा सके, वो ये हो सकती है. देन SETB, that means set bit. Right. This instruction is used, set B operand. Right. ये नाम से ही पता चल रहा है, सेट करना है. किसको सेट करना है? बिट को सेट करना है. कौन सी बिट को सेट करना है? जो कि यहां लिखी जाएगी. तो ऑब्वियस है ये जो ऑपरेंड होगा ये सिर्फ और सिर्फ बिट हो सकता है, बाइट नहीं हो सकता, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही बिट के साथ है. सो सेट बी, तो हम इस इंस्ट्रक्शन से किसी भी बिट को सेट कर सकते हैं. राइट. किसी भी बिट को, जैसे मैंने कहा SETB, कौन सा? कैरी को कर दिया. ये SETB मान लीजिए मैंने एस मान लीजिए मैं वही P1.0 कर दिया.
राइट, किसी भी उसको कर सकते हैं। या मान लीजिए जैसे मान लीजिए एसकॉन रजिस्टर है, एसकॉन रजिस्टर की 8 बिट है, इस 8 बिट का हर एक बिट एड्रेसेबल है, तो इसकी किसी भी बिट का जो एड्रेस है वो एड्रेस हम यहाँ पर दे सकते हैं। एसकॉन है या टी मोड है या ये जो भी रजिस्टर जो कि बिट एड्रेसेबल है, उस बिट एड्रेसेबल रजिस्टर की किसी भी बिट को हम सेट कर सकते हैं इस इंस्ट्रक्शन से, क्लियर कर सकते हैं इससे। पर ये दोनों फॉर्मेट में बाइट और बिट दोनों में अवेलेबल है। सेट का सिर्फ और सिर्फ इसी में अवेलेबल है, सेट बी के तौर पे। नेक्स्ट इज दैट इज रोटेट इंस्ट्रक्शन। रोटेट इंस्ट्रक्शन हमारे पास RLA है, RLAA, राइट, RLA, then RLC, RLCA, then RRA, then RRC, RRCA, right, and then there is SWA, swap A। ये 5 रोटेट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, राइट। ये 5 रोटेट इंस्ट्रक्शन है। इनमें से पहले इन 4 की बात करें। जैसा 85 में था, जैसा 86 में है। राइट रोटेट हो सकता है बिट बाय बिट, लेफ्ट रोटेट हो सकता है बिट बाय बिट। एक इंस्ट्रक्शन से एक ही बिट एक बारी में सिर्फ एक ही बिट होगी और एक इंस्ट्रक्शन से एक ही बारी में काम होगा। एक से ज़्यादा बिट को आपने राइट या लेफ्ट ट्रांसफ़र कराना है तो आपने उस केस के लिए 2 बार या जितनी बार भी वो रोटेट कराना उतनी बार ये इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। 85 में यही था कि एक बारी में एक रोटेट होता था, एक बिट रोटेट होती थी। 86 में एक बारी में एक भी हो सकती थी और CL नंबर ऑफ टाइम्स भी हो सकता था। यहाँ पर 85 की तरह सिर्फ एक ही होगी। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ अक्यूमुलेटर के ही डाटा को राइट या लेफ्ट शिफ्ट किया जा सकता है, राइट। ये बिना कैरी के और थ्रू कैरी हो सकता है, जैसे 85-86 में था। जैसे रोटेट लेफ्ट अक्यूमुलेटर, इसमें अक्यूमुलेटर को लेफ्ट की तरफ रोटेट करना है। दैट मीन्स हम एक बिट इधर भेजेंगे तो एक बिट ये MSB बिट जाकर के LSB बन जाएगी, ठीक है। रोटेट लेफ्ट अक्यूमुलेटर। दूसरा है रोटेट लेफ्ट अक्यूमुलेटर थ्रू कैरी। मीन्स अब ये एक तरीके 8 की बजाय 9 बिट का रोटेशन आपका होगा। ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट। ये आपका कैरी में गया और कैरी आपका यहां पर आया, ठीक है। इट इज 8 बिट रोटेशन, इट इज 9 बिट रोटेशन। इन दिस 9 बिट रोटेशन कैरी भी बीच में आ गई है। सेम यहीं पर रोटेट राइट अक्यूमुलेटर, अब राइट की तरफ रोटेशन होगा, दैट मीन्स द LSB वो आपकी MSB बन जाएगी। ये रोटेट राइट थ्रू कैरी, अक्यूमुलेटर को राइट की तरफ वो करो बट कैरी के थ्रू करो, ये CY और ये बन गया, ठीक है। रोटेट लेफ्ट अक्यूमुलेटर, रोटेट लेफ्ट अक्यूमुलेटर थ्रू कैरी, रोटेट राइट अक्यूमुलेटर, रोटेट राइट अक्यूमुलेटर थ्रू कैरी, एंड नाउ इट इज स्वैप। स्वैप A, ये भी A के साथ ही हो सकता है। स्वैप का है कि स्वैप द कंटेंट ऑफ द accumulator. Here the lower nibble and the upper nibble of this accumulator, ये लोअर निबल और अपर निबल है, तो ये स्वैप हो जाएगी। ये यहां चली जाएगी, ये यहां चली जाएगी। एक्चुअली इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ये और A। स्वैप A का मतलब एक तरीके से इक्वल है RLA को या RRA को आपने 4 बार इंस्ट्रक्शन दे दी। सो एक तरह से एक बिट करके 2 बिट करके तीसरी बिट और चौथी बिट, तो एक पूरा निबल स्वैप हो गया। सो अगर 4 बार करना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 टाइम्स दीज 2 इंस्ट्रक्शन यू कैन सिंपली से स्वैप। सो ये जो 2 निबल है 8051 की वो स्वैप हो जाएगी, राइट। सो इट इज अ रोटेट instruction. So if you see, almost the same instructions are available in 85, the same instruction are available in 86,
बट यू हैव टू कीप ट्रैक कि अभी कौन सी इंस्ट्रक्शन का क्या सिंटैक्स है 85 में, कौन सी इंस्ट्रक्शन का क्या सिंटैक्स है 86 में, और क्या सिंटैक्स है 8051 में। ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अदर एज फार एज एक्सप्लेनेशन इज कंसर्न दैट इज मोर और लेस सेम। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम और लिख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ राइट ए प्रोग्राम टू अनपैक ए पैक्ड BCD नंबर एंड सेव द रिजल्ट इन रजिस्टर R1 and R0 of bank 2. That means packed BCD को unpacked BCD में करना है, BCD में करना है, राइट? और जो रिजल्ट आएगा वो R1 और R0 में सेव करना है, और ये R1 और R0 कहाँ हो? ये बैंक 2 में होंगे, ठीक है? That means now you have to ensure that this R1 and R0 they belong to the bank 2, not bank 0 or bank 1. और कह रहा है use direct addressing only, ठीक है? डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो सबसे पहले जो डाटा है जिसमें कि पैक्ड BCD नंबर है, जैसे मान लीजिए 29, इस 29 को पहले हम अकोमोलेटर में लेके आएंगे। मैंने कहा मूव A, 29 हैश 29H, ठीक है? इसको किसी रजिस्टर में सेव कर लिया, मूव B, A में सेव कर लिया, राइट? अब क्या करेंगे, इस 29 को हम एक बार 0F के साथ, ये हमारा क्या हो जाएगा 09 हो जाएगा, और एक बार 29 को F0 के साथ हम एंड करा देंगे तो ये 02 हो जाएगा, राइट? ये 09 तो हमारा अनपैक्ड हो ही गया। ये 20 को हम 4 बार रोटेट करा देंगे, दैट मीन्स इसको इसके साथ स्वैप करा देंगे, लोअर निपल को हायर निपल के साथ स्वैप करवा देंगे और ये 02 हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये होगा। सो A को B में सेव कर लिया, राइट? अब मास्किंग करेंगे ANL, A को क्या 0F के साथ हमने ऐड करा दिया, 0F के साथ ऐड करा दिया, रिजल्ट A में आ गया। नाउ A इज हैविंग दिस थिंग। अब इसको हमने मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर करना है R1 एंड R0 में, और R1 एंड R0 को हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से एड्रेस करना है, R1 और R0 यूज नहीं करना। अब यहां पर आप आ जाइए कि हमारा जो मेमोरी बैंक था, हमारी जो मेमोरी लोकेशन है, ये हमारी मेमोरी है इंटरनल रैम की, ये 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, ये हमारा बैंक 0 था। फिर 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, ये हमारा अगले 8 रजिस्टर थे बैंक। ये बैंक 0, और ये बैंक 1, और अब 10, 11, 12 एंड सो ऑन, ये हमारा आ गया बैंक 2। बैंक 2 का ये R0, ये R1, ये R2 एंड सो ऑन। तो हमने कहां सेव करना है? R1 और R0 में सेव करना है हमारा रिजल्ट, राइट? जो अनपैक्ड था वो R1 और R0 में सेव करना है, पर ये कह दिया कि R1 और R0 वर्ड यूज नहीं करना है, दैट मीन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज नहीं करनी, बल्कि हमने क्या करना है, हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग यूज करनी है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग यूज करनी है तो R0 का एड्रेस कितना हुआ 10H। सो ये जो आया जो कि अकोमोलेट होता है, इसको 10 में हमने भेज देना है। सो वी विल से मूव 10H, A, राइट?
अब हमने कहा मूव बी को फिर ए में बुला लो, ए कोमा बी को ए में बुला लिया, और अब 4 बार रोटेट करना है, तो 4 बार रोटेट करने के लिए अभी हमने कहा SWAP स्वैप ए के जो लोअर निबल था वो हायर बन गया, हायर निबल था जो वो लोअर बन गया, दैट मीन्स 2002 में कन्वर्ट हो गया। एंड देन अच्छा ये तो किया वो तो, चलो इसको वैसे कर लेते हैं, या इसको कहा ANL ए कोमा, यहाँ 0F के साथ किया था, यहाँ F0 के साथ इसको कर लिया, राइट, फिर स्वैप कर दिया, और अब इसको मूव 1 कोमा ए बना दिया। सो दिस वे ये अनपैक्ड BCD नंबर जो था वो अनपैक्ड BCD नंबर में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो दिस इज all about arithmetic and logical instructions of 8051. Next class we will discuss the branching instructions of 8051. ठीक है? Okay, thank you.